हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो ऑलरेडी हमारा वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया है। डॉट प्रोडक्ट, देन एडिशन वेक्टर, सब्सट्रैक्शंस वेक्टर, उसका बेसिक कंसेप्ट सब हो गया है। गो एंड प्रैक्टिस। अगर हम देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर गिव्स यू द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर वेक्टर लेंगे दो वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू आता है वेक्टर में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। सो just have a look about the cross product, how we are going to find out the cross product between the two vectors। अगर दो वेक्टर दिया गया है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। a क्रॉस b is equals to how much, we'll discuss in two different way। one is direct by taking the two cross product between a and b, and another one is by taking it in determinant form। उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी डाल के एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स हैव ए लुक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। सो अगर एक वेक्टर ए होता है, ए इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ आई कैप प्लस ए वाई ऑफ जे कैप प्लस ए जेड ऑफ के कैप। बी एक वेक्टर होता है, बी एक्स ऑफ आई कैप प्लस बी वाई ऑफ जे कैप प्लस बी जेड ऑफ के कैप। ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट। कि ए क्रॉस बी इज द क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम अगर एक वेक्टर लेते हैं सी वेक्टर, तो सी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो C वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। और if A and B are the two vectors, then we have to find out the cross product in the direction of perpendicular to both A and B। So A cross B वेक्टर अगर निकालेंगे तो what about its formula, A cross B is equals to होता है AB sin theta and cap। What about A? A is the mod of A vector और B क्या है, mod of B vector। That means magnitude of A and B, and theta is the angle between the vectors। If A is a vector and B is a vector, then this is the angle theta। So theta is the angle between A and B, and n cap is the unit vector perpendicular to both A and B। n cap is the unit vector perpendicular to both A and B vector। Okay, so n cap is the unit vector। So if we'll take the A cross B, then we'll get the vector। So that's why it is called vector product। Okay, now if A vector is given like this and B vector is equals to this much, in Cartesian coordinate we are taking x, y and z are the three coordinate axes। So if we'll take, then this is our net system in rectangular or Cartesian coordinate। So if this one is our x-axis, this one is y-axis, this one is z-axis। So here unit vector is our I cap, unit vector is j cap, here unit vector is k cap। So I cap, j cap and k cap are the unit vector of your x, y and z coordinate respectively। And what about the angle between these three unit vectors, 90 degree are perpendicular to each other। So if we'll take the cross product of I dot I, then how much, I dot j is how much, just find out first। So if we'll take A cross B is equals to AB sin theta, then its magnitude is how much, AB sin theta। So A cross B is equals to AB sin theta is its magnitude। So if we'll take A and B vector, and if we want to find out its mod value, then its value is your AB sin theta। Now if we'll take the same vector, अगर हम एक same unit vector लेते हैं जैसे I cap क्रॉस I cap, तो कितना आएगा, उसका mod अगर निकालेंगे तो I cap
commod, then I cap commod into sine. What about the angle between the two same unit vector? 0 degrees. और sin 0 is how much? 0. So sin 0 is your 0. So इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0. इसी तरह अगर हम लेंगे I वेक्टर क्रॉस I वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, J वेक्टर क्रॉस J वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, K वेक्टर क्रॉस K यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. So if we'll take the cross product between the two same unit vector, then its value is equals to 0. Next, अगर हम देखेंगे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर तो उसका वैल्यू क्या आता है हम देख लेते हैं पहले. So if I cap क्रॉस J कैप और I क्रॉस J का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना आ रहा है? ये आ जाएगा I वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन J वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन योर साइन. व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन दिस टू? 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री. सो I कैप इज इक्वल्स टू 1, J कैप इज इक्वल्स टू 1, साइन 90 इज योर 1. सो इट्स वैल्यू इज योर 1. सो अगर हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1. देन व्हाट अबाउट इट्स एन कैप? अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो एन कैप क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, दैट मीन्स योर के कैप. सो आई अगर हम लिखेंगे आई क्रॉस जे, सो आई क्रॉस जे कैप अगर निकलना है तो आई वेक्टर और जे वेक्टर का मॉड की दैन साइन 90 डिग्री and n cap is your perpendicular to both n j, that means your k vector. So इसका वैल्यू आ जाएगा 1. ऑलरेडी हम निकल चुके हैं, इसका वैल्यू आ गया 1. So just put it 1. So 1 into k cap is your k cap. So I cross j. I cross j is our k vector or k unit. If we'll take the cross product of I cross j, then we'll get k. Similarly, if we'll take j cross k, I j k is the sequence. इसको याद ऐसे रखेंगे. I cross j आता है k यूनिट वेक्टर, देन j cross k. j cross k का यूनिट वेक्टर आ जाएगा I कैप. k देन k cross I, k cross I इज इक्वल्स टू आ जाएगा j कैप. यह आ गया हमारा दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टी में तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर और क्रॉस प्रोडक्ट है एंड वी विल गेट नेगेटिव फैक्टर ऑफ दैट वन. सो नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम उसका लिखेंगे आई सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो I क्रॉस J अगर K आ रहा है तो व्हाट अबाउट J क्रॉस I? J क्रॉस I इज इक्वल्स टू माइनस K. देन K क्रॉस J यूनिट वेक्टर अगर लेते हैं तो माइनस I कैप. देन I क्रॉस K कैप इज योर माइनस J कैप. दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स. सो इसी को हम पुट करके अभी A क्रॉस B निकालना है. सो सेम यूनिट वेक्टर का अगर लेते हैं तो 0 आता है और दो डिफरेंट के ले लेंगे तो फिर उसका वैल्यू थर्ड यूनिट वेक्टर आता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स हैव अ लुक अबाउट A क्रॉस B. A क्रॉस B निकालते हैं अभी. सो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. I क्रॉस I इज इक्वल्स टू 0, J क्रॉस J इज कैप इज इक्वल्स टू 0, K कैप क्रॉस K कैप इज इक्वल्स टू 0. सो ये तीन फॉर्मूला हमें चाहिए अभी इसका डेरिवेशन करने के लिए. सो A क्रॉस B दैट मीन्स A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच? AX I कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यह आ गया हमारा ए वेक्टर। देन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यह आ गया बी वेक्टर। अगर ये दोनों का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, हम इसको दो मेथड में करते हैं। फर्स्ट लेट अस लुक अबाउट द डायरेक्ट मेथड्स। ओके, सो ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू 0, सो इसका वैल्यू आ गया 0। देन ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज योर के कैप। ठीक है, नेक्स्ट ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के इज योर माइनस जे, जे कैप प्लस ए वाई को फिर तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज योर माइनस के कैप। ओके, देन ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे इज योर 0। ओके, देन ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड मीन्स यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज योर आई कैप। ओके, नेक्स्ट ए जेड को तीनों वेक्टर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड के टर्म्स है, तो ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई इज योर जे यूनिट वेक्टर। इसको केयरफुली करना है कि प्लस और माइनस में ध्यान देना। देन ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई। ओके, देन ए जेड प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के इज योर 0। सो ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट टर्म्स आ गया। अभी हम इसका वैल्यू निकलते हैं, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0। ओके, नेक्स्ट पहले आई वेक्टर का लिख लेते हैं। आई वेक्टर का दो टर्म्स है, यहाँ पर ये एक टर्म्स और यहाँ पर एक टर्म्स, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, सो आई कैप इंटू क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट प्लस जे कैप, जे कैप में क्या हो जाएगा, ओके दिस वन इज ए टर्म्स जे कैप एंड यहाँ पर एक टर्म्स है, तो जे कैप में अगर लिखेंगे तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ओके, देन के कैप इज इक्वल्स टू, ओके के कैप अगर कॉमन लेते हैं तो ए एक्स बी वाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए वाई बी एक्स। ओके, सो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, दिस वन इज आवर फाइनल फॉर्मूला। सो इस मेथड में अगर करेंगे तो हमें पहले ये यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जानना है, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करके यू कैन फाइंड आउट द फाइनल फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज ए सिंपल मेथड्स और सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे हम करते हैं उसी फॉर्म में करेंगे, सिर्फ यूनिट वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर डालना है। ओके, तो इसका और एक मेथड्स है, इट इज आवर डिटरमिनेंट्स मेथड। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द डिटरमिनेंट्स मेथड। इफ ए एंड बी वेक्टर आर द टू वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी हमें निकालना है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड्स। ओके, सो ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सिंपली आई कैप जे कैप and k cap. I, j and k are the unit vector in x, y and z directions. Okay.
सो ए के कोफिशिएंट हो जाएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी का हो जाएगा बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट? I cap into simply these four terms, ay into bz. पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, ay into bz, देन माइनस by into az. ओके, देन यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको प्लस में ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा इसका. एक्चुअली अगर हम पूरा डिटर्मिनेंट फॉर्म में जाएंगे, सो जस्ट याद रखना कि यहाँ पर इसको प्लस में लेना है, इसको माइनस में, इसको प्लस में. सो हमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो माइनस जे कैफ इंटू जे कैफ के लाइन में लेंगे तो उसको एक्चुअली रोटेट कर देते हैं. तो जे कैफ का लाइन में लेना है तो कौन सा टर्म्स आ रहा है? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड. तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. ओके, देन प्लस के कैप. के कैप में अगर लेना है तो के कैप को हम सर्कल कर लेते हैं, सेंटर कर देते हैं उसको. तो के कैप के लिए ए वाई बी एक्स बी वाई. ओके, सो इसको भी सेम सीक्वेंस में लेते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स. ओके, सो ये आ गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला फ्रॉम द डिटर्मिनेंट मेथड्स. सो डिटर्मिनेंट्स मेथड्स थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू दैट मेथड्स. सो जो भी आपको ठीक लगे यू कैन चूज दैट मेथड. इन बोथ मेथड्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. सो कभी कभी हम क्रॉस चेक करने के लिए दोनों मेथड ट्राई करते हैं. सो दिस वन इज अबाउट द ए क्रॉस बी वेक्टर. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. 1, 2, 2 and 1, 3, 6 are the 2 points. Okay, then find out the cross product between these two position vectors. अगर एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है तो p अगर वेक्टर है तो उसको कैसे लिखेंगे? p i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. ओके, और q का कैसे लिखेंगे? i कैप प्लस 3j कैप plus 6k cap. Okay, next if we want to find out the cross product then direct determinant form में डालते हैं, p vector cross q vector. So p vector cross q vector क्या हो जाएगा? I cap j cap k cap. Okay, then 1 2 2 are the coefficient. Here 1 3 6 are the coefficient. Then I cap into 2 into 6, 2 into 6 minus 3 into 2. Okay, then minus j cap into j cap. Next is j cap. तो j cap के लिए क्या करेंगे? 1 into 6 minus 1 into 2. Okay, then k cap प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा ये 4 के लिए? सो 1 into 3 माइनस 1 into 2. Okay, 1 into 2. So what about its value? I cap into 2 into 6 here 12 minus into 6 2 is your 6. Okay, then j cap 6 minus 2 के plus k cap into 3 minus 2. Is it okay? So next its value is equals to 12 minus 6 is your 6 I cap. Then 6 minus 2 is your 4 j cap आ जाएगा. Then 3 minus 2 is your 1 so k cap. सो ये आ गया हमारा p क्रॉस q वेक्टर. अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिमिलर वे में स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेके हम कर सकते हैं इसका. ओके, सो
we can take our own examples. Next, if anyone asks you to find out the vector which is perpendicular to P and Q, अगर perpendicular to P and Q निकालना है, that means we have to find out the cross product or P cross Q. Okay, this is about the cross product. Next, let have a look about some property. Property क्या आ जाएगा इसका cross product का? Simply, if A is a vector, then if we'll take cross product of the same vector, then its value is equals to 0. This one is the first property. और एक प्रॉपर्टी आएगा A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A. ओके, ये तो प्रॉपर्टी आ जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. So go and practice more and more examples related to this by both methods, determinant methods and your direct methods. Any methods you can choose, okay? But I think determinant method is better. Determinant methods में actually इतना ज़्यादा mistake नहीं होता है. So just try to solve it in determinant methods. So next class we'll discuss about the Lami's theorem, which is about the three forces acting on a similar point. So how we are going to solve that type of problems we'll discuss in next class.